how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study coal and petroleum. Ready, steady, start. Observe the pictures carefully. Write the type of fuel used by each of them. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know: fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, natural resources and limited energy crisis, conservation, fossil fuels. We know that the materials we use in our daily lives are obtained either naturally or artificially man-made. In our daily life, we use many articles such as tables, chairs, fuels, machines and utensils. What materials are these articles made of? We get different materials from plants and animals. For example, we get cotton and wood from plants and wool and milk from animals. However, some materials like plastics are made by man. These materials are artificial. Okay, देखिए हम अपने डेली लाइफ में बहुत डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यूज करते हैं. कुछ नेचुरल होते हैं तो कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब के मैन मेड होते हैं. ओके, तो जो आर्टिकल्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? टेबल, चेयर्स, ठीक है, मशीन्स हो गए, फ्यूल्स हो गए. ओके, नाउ कुछ मटेरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं तो कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं. प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? कॉटन मिलता है, वुड मिलता है. एनिमल से हमें वूल मिलती है और मिल्क मिलता है. ओके, तो जो हमें ह्यूमन बींग्स जिसे क्रिएट करते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल मटेरियल्स कहते हैं. ओके, नाउ our natural resources are further divided into two classes: renewable resources and non-renewable resources. Okay, हमारे natural resources जो हैं वो two classes में divided हैं. एक है आपके renewable resources और दूसरा है आपका non-renewable resources. Okay, renewable resources are those natural resources which are not exhausted or which can be replaced within a responsible period of time through natural processes. They are therefore also called inexhaustible resources. They are not likely to be finished by human activities and are present in unlimited quantities. Sunlight and air are some examples of inexhaustible resources. Okay, देखिए जो renewable resources होते हैं वो कभी भी exhaust का मतलब ख़त्म नहीं होते हैं. ओके, तो वो हमेशा हम उन्हें renew कर सकते हैं. ठीक है, इन्हें हम inexhaustible resources भी कहते हैं. इनके examples हैं air और sunlight. Okay, now non-renewable resources are the resources which are limited in quantity. Once used up or exhausted, they cannot be replaced easily. Therefore, they are also called exhaustible resources. Fossil fuels, coal, petroleum, forest and minerals are some examples of exhaustible resources. Okay, देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, उन्हें हम एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज कहते हैं. जो ख़त्म हो जाते हैं तो जल्दी से हम उन्हें दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, वो हमें नेचुरली ही मिलते हैं. ओके, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, ओके, कोल हो गया, ये फ्यूल्स हो गए आपकी फॉसिल फ्यूल्स. ओके, इन्हें हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं. नाउ रिसोर्सेज नेचुरल, मैन मेड. रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेड, non-renewable resources or inexhaustible: electricity, LPG and CNG, fossil fuels, coal, petroleum, minerals, sunlight, water. ओके, देखिए resources टू टाइप्स के हैं, नेचुरल और मैन मेड. ठीक है, नेचुरल में आपके आगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कि जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि इनएग्जॉस्टेबल होते हैं. ठीक है, नाउ जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स. ओके, और जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो है आपके सनलाइट एंड वाटर. वे मैन मेड जो रिसोर्सेज हैं आपके कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिसिटी, LPG, CNG. ओके, लैब एक्टिविटी 1. Make a list of 10 different materials which you use every day and classify them as natural or man-made as shown in the given table. Materials: natural, man-made. Example: water, natural. Example: toothpaste, man-made. ये आप खुद से करेंगे. ओके, fossil fuels. Fossil fuels are those fuels that are formed from the dead remains of plants and animals, fossils that lay buried under the ground for millions of years. They are exhaustible resources. Coal, petroleum and natural gas are examples of fossil fuels. Okay, देखिए फॉसिल फ्यूल्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं. फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं आपके प्लांट्स के, एनिमल्स के. ओके, तो ये जो डेड
रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के जो सालों तक ब्यूरिड मतलब के दफन रह जाते हैं सॉइल के अंडर, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर इनको एक बार यूज अप कर लिया गया तो जल्दी से इन्हें आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स are met by fossil fuels. Transportation, cooking, manufacture and electricity generation are some industries depend majorly on coal and petroleum. Let's study about some important fossil fuels in detail. देखिए बहुत सारी एनर्जीज हैं ऐसी जो कि फॉसिल फ्यूल पर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कुकिंग हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि कोल और पेट्रोलियम पर ही डिपेंड करती हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। नाउ फॉसिल फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स में है कोल, कोक, कोल तार, कोल गैस। लिक्विड फ्यूल्स में है पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। और गैस फ्यूल में है नेचुरल गैस, CNG। ओके, नाउ environmental literacy. Fossil fuels on burning release carbon dioxide, CO2, in the environment. CO2 is a greenhouse gas which causes global warming. This causes harmful effect on the environment. देखिए फॉसिल फ्यूल्स को अगर जला दिया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 क्रिएट करती है एनवायरनमेंट में। ओके, तो CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है। ओके, तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। नाउ कोल, coal is a black or brownish black fossil fuel which is hard as a stone. It's mainly consists of carbon and small amounts of hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Coal is used as a domestic fuel. It is used as a fuel in thermal power stations and industries. It is of 4 types depending upon the carbon content. Okay, देखिए कोल जो है ये एक ब्राउनिश ब्लैक फॉसिल फ्यूल होता है जो कि एक हार्ड होता है स्टोन की तरह। ओके, ये इसमें कार्बन होता है। ओके, ये कंसिस्ट करता है कार्बन और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ओके, तो कोल डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है और ये यूज़ किया जाता है पावर स्टेशंस और इंडस्ट्रीज़ में। तो इसके कुछ टाइप्स यहाँ पे बताए हुए हैं। देखिए एंथ्रेसाइट 95% कार्बन, bituminous 7 to 85% carbon, lignite 60 to 70% carbon, peat 50 to 60% carbon. Anthracite is regarded as the best form of coal due to its कार्बन रिच कंटेंट। देखिए एंथ्रासाइट जो है इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल बोला जाता है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोल, इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रेजेंट कोल रिजर्व स्टार्टेड फॉर्मिंग अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो। द डेड ट्रीज ऑफ वास्ट डेंस फॉरेस्ट विच कवर्ड द अर्थ एट दैट टाइम गॉट ब्यूरिड ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस एंड कैलेमिटीज। देखिए ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि जो कोल रिजर्व्स है वो फॉर्म होना 300 मिलियन ईयर्स पहले से शुरू हुए हैं। ओके, क्योंकि बहुत वास्ट मतलब कि बहुत बड़े डेंस फॉरेस्ट जो थे वो अर्थ पर जब नेचुरल कैलेमिटीज आई थी उस प्रोसेसेस के टाइम पर वो ब्यूरिड हो गए थे। ओके, नाउ न्यू ट्रीज ग्रू ऑन दीज वेटलैंड्स ऑन द डेड ट्रीज गोट कवर्ड अंडर देम। दिस प्रोसेस ऑफ ब्यूरिंग ऑफ डेड ट्रीज डीप इनटू द अर्थ वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज। Sometimes the entire forest were buried due to natural calamities such as earthquake and volcano eruptions. Due to high temperature and high pressure inside the earth, these dead trees were slowly converted into the carbon substance called coal. देखिए अब जो हमने देखा कि नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से ट्रीज़ जो थे वो ब्यूरिड हो गए थे और फिर उसके ऊपर क्या होने लगा, उसके ऊपर न्यू ट्रीज़ ग्रू होने लगे। ओके, और इस तरीके से ये चीज़ रिपीट हुई कि नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई जैसे कि अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनके ट्रीज़ जो थे वो गिर गए थे और वो काफ़ी टाइम तक ब्यूरिड रहे थे। तो अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है और उसी की
वजह से जो आपके अर्थ के अंदर चीज़ें क्रिएट हो रही थी उसे हम फॉसिल्स कहते हैं, जैसे कि जिससे क्या जनरेट हो रहा था, कोल जनरेट हो रहा था। ओके, नाउ दिस केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें वुड को कोल में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, नाउ कोल एंड कोल माइंस, the reserves of coal below the land are called coal mines. The process of extracting coal from these mines is called mining. The commercial mining in India was started in Raniganj in 1774 by Warren Hastings, the first Governor General of Bengal. Today, coal mines have been found in India in West Bengal, Odisha, Madhya Pradesh, Jharkhand and Tamil Nadu. Some of the largest coal mines in India are at Jharia, Jharkhand, Bakaro, Jharkhand एंड रानीगंज, वेस्ट बंगाल। ओके, देखिए जो कोल रिजर्व्स होते हैं लैंड के अंडर उन्हें हम कोल माइंस कहते हैं, और उन माइन से कोल्स को जब निकाला जाता है इस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। ओके, तो जो कॉमर्शियल माइनिंग है इंडिया में वो स्टार्ट हुई थी रानीगंज से, 1774 में ये करवाई गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर थे। ओके, आज के टाइम में कोल माइंस इंडिया में काफ़ी जगहों पे पाई जाती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। ओके, तो झारखंड के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे कोल माइंस पाई जाती हैं, जैसे कि झारिया, बकारो, रानीगंज, वेस्ट बंगाल में। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ कोल एंड देयर यूजेस। Many useful products are obtained from coal. These products are obtained by the process called destructive distillation. Okay, देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि यूजफुल होते हैं, जो हमें कोल से ऑब्टेन करते, हम कोल से ऑब्टेन करते हैं। ओके, ये प्रोडक्ट्स जो हम ऑब्टेन करते हैं इनका जो प्रोसेस होता है उसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल इज हीटेड एट अ वेरी हाई temperature of about 1000 degrees Celsius in the absence of oxygen to yield many useful products like coke, coal, tar and coal gas। देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान कोल को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, मतलब कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, और इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है और ताकि यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल सके हमें, जैसे कि कोल, कोल तार या फिर कोल गैस। ओके, कोक। Coke is the solid residue left behind after the destructive distillation of coal. It is almost the pure form of carbon, 98%, and is used as a fuel, as a reducing agent in some metallurgical processes. It is used to produce gaseous fuels, procedure gas and water gas. Producer gas is produced by passing air over red hot coke and water gas by passing steam over white hot coke. It is also used as manufacture steel. Okay, देखिए कोक जो होता है ये एक सॉलिड रेसिड्यू होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब कोल का हो रहा होता है तो इट इज लेफ्ट बिहाइंड। ओके, देखिए कोक जो होता है ये एक सॉलिड रेसिड्यू होता है, जब आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। ओके, नाउ ये एक प्योर कार्बन होता है, 98% इसमें कार्बन होता है, और जो फ्यूल फॉर्म होता है वो इसके दौरान फ्यूल फॉर्म होता है। ओके, अब काफ़ी सारी गैसियस फ्यूल्स भी यहाँ पे फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर गैस है और वाटर गैस है। ओके, प्रोड्यूसर गैस जो है वो फॉर्म होती है, एयर को पास किया जाता है रेड हॉट कोक के ऊपर, वहीं वाटर गैस प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम को पास किया जाता है वाइट हॉट कोक के ऊपर। ओके, नाउ कोल तार। कोल तार इज अ black viscous liquid also obtained during the destructive distillation of coal. It has an unpleasant odor. It is used in the preparations of pesticides, explosives, paints, perfumes, shampoos, naphthalene balls and synthetic dyes. Earlier it was used to construct roads, but nowadays bitumen, a petroleum product, is used for making roadways. Okay, देखिए कोल तार ये एक ब्लैक विशियस लिक्विड होता है जो कि हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है कोल की। ओके, और इसमें एक अनप्लीजेंट ओडोर होता है, ये पेस्टिसाइड्स प्रिपेयर करने के लिए रखा जाता है, एक्सप्लोसिव पेंट्स, परफ्यूम्स, इन सारी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके,
पहले रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं होता है। अब रोडवेज को बनाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, कोल गैस इज अ गैसियस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ coke. It is a mixture of hydrogen, methane, carbon dioxide and other gases. All these gases are combustible gases. Earlier it was used in street lighting and as a domestic fuel, but now it is used as a fuel in industry situated near coal power plants. Okay, देखिए कोल गैस जो है ये एक गैसियस प्रोडक्ट है जो कि हमें जब कोक की प्रोडक्शन हो रही होती है तो उस टाइम पे हमें ये ऑब्टेन होती है। ओके, ये एक मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी सारी गैसेस का। ओके, और जितनी भी गैसेस होती हैं ये क्या होती हैं, कंबस्शन गैसेस होती हैं, कंबस्टिबल गैसेस होती हैं। ओके, पहले इसे स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता था, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, अप पावर प्लांट्स में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, पावर प्लांट के पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। ओके, नाउ लैब एक्टिविटी 2, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन कोक, कोल तार एंड कोल गैस फ्रॉम coal by destructive distillation in the laboratory. Materials required: 2 boiling tubes, Bunsen burner, stand powdered coal, cork and thin tubes. Procedure: take a little powdered coal in a boiling tube, fix it to the stand and shown in figure. Take some water in the other boiling tube and allow it to stand as shown. Both the boiling tubes should be fitted with corks and thin tubes. Now heat powdered coal very strongly. Allow the gases formed to pass through the thin tube into the test tube containing water. Observation: this black residue behind in the first boiling tube after all the gas has evolved in coke in the second test tube. In the back, black sediment at the bottom in coal tar, and the gas that rises and escapes from the tube is coal gas. Inference: thus we can obtain coal, coal tar and coal gas by destructive distillation. ये आप खुद से करेंगे। Petroleum is a liquid fossil fuel. The word petroleum is derived from the Latin word petra meaning rock and oleum meaning oil. It is found between rocks in the earth's crust. It is also called crude oil. ओके, देखिए पेट्रोलियम क्या है, एक तरीके का लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है। ओके, अब इसका वर्ड क्या है, ये लैटिन वर्ड है पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ओके, ये पाए जाते हैं रॉक्स के बीच में, मतलब कि जो अर्थ के क्रस्ट में जो रॉक्स होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ओके, इन्हें क्रूड ऑयल भी हम बोलते हैं। नाउ petroleum or crude oil is formed beneath the layers of the rock deep inside the earth crust. It is viscous dark colored liquid. It was formed due to the decomposition of marine organisms which died million years ago. Their bodies settled at the bottom of the sea, which later got covered with sand and clay. Enormous heat and pressure over millions of years transformed the dead organism into petroleum and natural gas. The petroleum then seeped down into the reached the bed on non-porous rocks and remained between the layers of rock. ओके, देखिए पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल जो होता है ये अर्थ क्रस्ट के बीच में जो रॉक्स होते हैं बिल्कुल डीप डाउन वहाँ पे ये पाया जाता है। ये एक ब्लैक बिल्कुल डार्क विशस टाइप का लिक्विड होता है, ठीक है, और ये फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन, मतलब कि मिलियन ईयर्स पहले जो डाइड आपके प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं, जो भी हमारे डिकम्पोजिशंस होते हैं, वो जो थे उनके ऊपर क्ले और सैंड की लेयर जो है वो कवर होती गई और मिलियंस ऑफ ईयर्स बढ़ने के बाद उनमें अर्थ की जो हीट थी उसकी वजह से ये फॉर्म होते हैं। ओके, और देखिए साइड में आपको पेट्रोलियम अकर्स बिटवीन लेयर्स एंड इम्पीरियस रॉक्स। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो सबसे लोअर लेयर जो होती है यहाँ पे जो हमें पेट्रोलियम है वो मिलता है। ओके, नाउ petroleum is a complex mixture of many organic compounds mixed with saline, water and salt. Petroleum and natural gas are often found together in large deposits deep inside the earth crust and are
obtained by drilling holes, oil wells through the earth's crust. ओके देखिए, पेट्रोलियम जो है ये मिक्सचर होता है बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ओके, जो मिक्स होता है सलाइन वाटर और सॉल्ट में, ओके। पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस जो होती है ये एक साथ ही पाई जाती हैं, जिन्हें अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है ड्रिल करके, जैसे कि ऑयल वेल्स, कुएं, जो तेल के कुएं होते हैं जैसे हम बोलते हैं, उसमें से निकाला जाता है, ओके। नाउ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एंड अ बून फॉर द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री. फॉर दिस रीजन पेट्रोलियम इज ऑफन कॉल्ड लिक्विड gold and black gold. The places where petroleum deposits are found are called petroleum wells. देखिए, ये एक important resource है हमारी कंट्री का, ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड या फिर ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और जहाँ पर ये पाए जाते हैं, पेट्रोलियम डिपॉजिट जहाँ पे पाए जाते हैं, उस एरिया को हम पेट्रोलियम वेल्स बोलते हैं, ओके। इन इंडिया पेट्रोलियम वेल्स और रिजर्व्स आर फाउंड इन असम, गुजरात एंड डेल्टा रीजन्स ऑफ रिवर गोदावरी एंड Cauvery and the offshore reserves near Mumbai in the Arabian Sea called Bombay High. ओके देखिए, इंडिया में जो पेट्रोलियम वेल्स है वो पाए जाते हैं असम, गुजरात या फिर गोदावरी के डेल्टास में, कावेरी के डेल्टास में या फिर मुंबई के ऑफशोर्स में, जो कि अरेबियन सी के पास में है, ओके, जिसे हम बॉम्बे हाई भी बोलते हैं। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. Petroleum is a dark-colored oily liquid which has an unpleasant odor. It is a mixture of various constituents like petroleum gas, diesel, petrol, paraffin wax and lubricating oil. These constituent substances are called fractions. The process of separating these constituents of petroleum is known as refining. This process is carried out by fractional distillation in the petroleum refinery. The process continues till the crude oil is separated into these fractions which boils at different temperatures. Okay, देखिए, पेट्रोलियम एक डार्क कलर का ऑयल लिक्विड होता है, ओके, जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट ऑडोर देता है, ओके। ये एक मिक्सचर होता है काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, ओके। अब इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम पेट्रोलियम को अलग करते हैं, ओके, इन सारे प्रोडक्ट से अलग करते हैं पेट्रोल को, उसे हम रिफाइनिंग कहते हैं, ओके। अब ये प्रोसेस जो है ये कैरी किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, जिसमें से हम पेट्रोलियम रेफिनरी निकालते हैं, ओके। नाउ crude oil is transported to places where refining is done. These places are called refineries or oil refineries. जो crude oil होता है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे रिफाइनिंग की जाती है, और इन जगहों को हम रेफिनरीज या फिर ऑयल रेफिनरीज बोलते हैं, ओके। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट फ्रिक्शंस ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग points. In this process, the crude oil is heated up to 400 degrees Celsius in a furnace and the vapors are passed through the column called a fractionating column. Okay, देखिए, नाउ जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है पेट्रोल का, वो बेस होता है किसके ऊपर, कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर जो कि डिफरेंट फ्रैक्शंस के होते हैं, ओके। अब इसे हीट किया जाता है, जो क्रूड ऑयल होता है उसे हीट किया जाता है अप टू 400 डिग्री सेल्सियस में फर्नेंस में, ओके। और उसके थ्रू जो कुछ वेपर्स होते हैं वो पास होते हैं उस कॉलम के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग column, okay. Now when the vapor or the crude oil enters the tower, the fraction having the lowest boiling point condenses first and the vapors are collected. Hence different fractions condense at different temperatures and are collected at different levels. The fraction having the highest boiling point settles at the bottom. Okay, देखिए, जो क्रूड ऑयल के वेपर्स होते हैं जब वो इस टावर में एंटर करते हैं, तो जो ये फ्रैक्शन करते हैं किस पे, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे, ओके, और ये कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह पर, ओके। तो डिफरेंट फ्रैक्शंस कंडेंस करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, ओके। नाउ जो फ्रैक्शन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे होता है वो बॉटम में सेटल हो जाता है, ओके। प्रेजेंटली ऑयल वेल्स हैव बीन फाउंड इन असम, गुजरात एंड मुंबई हाई. सम ऑफ द प्लेसेस इन आवर कंट्री वेयर पेट्रोलियम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑयल वेल्स आर. अब प्रेजेंटली आज के टाइम पे जो ऑयल वेल्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, असम में, गुजरात में और मुंबई हाई में, ओके। कुछ प्लेसेस ऐसी है हमारी कंट्री में जहाँ पे पेट्रोलियम जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑयल वेल से, ओके। देखिए कौन कौन सी जगह हैं, अंकलेश्वर एंड कलोल इन गुजरात,
Rudrasagar and Lakwa in Assam, Mumbai High, deltas of river Kauri, Krishna and Godavari. Okay, exploration of more oil is going to under the supervision of Oil and Natural Gas Corporation Limited ONGC throughout the country. जो एक्सप्लोरेशन होती है कुछ ऑयल की वो सुपरविजन के अंडर चलती है. ओके, जैसे कि कौन सी ऑयल हो गए या फिर ONGC हो गया. ओके, हमारी कंट्री में. The oil refineries in India are located in Mumbai, Chennai, Mathura, Barunai, Digboi, Guwahati, Haldia, Kochi, Koyali and Visakhapatnam. The oldest oil refinery in India is at Digboi in Assam, which was established in 1901. ठीक है, जो ऑयल रेफिनरीज है सबसे पुरानी हमारे इंडिया में वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है? मुंबई में है, चेन्नई, मथुरा, बरुनाई, दिग्बोय, गुवाहाटी. तो इनमें से सबसे पुरानी जो है वो है दिग्बोय, असम में. ओके, नाउ research skills. The first oil well of the world was found in 1859 in Pennsylvania in USA. In India, the first oil well was found in 1867 at Makum in Assam. देखिए, जो सबसे पहली ऑयल वेल थी वर्ल्ड की वो पाई गई थी 1859 में यूएसए में पेनिसिल्वेनिया में. ओके, और इंडिया में जो पहली ऑयल वेल थी वो 1867 में पाई गई थी माकुम, आसाम में. ओके, नाउ फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस. नेम ऑफ फ्रैक्शन यूजेस. पेट्रोलियम गैस as domestic fuel in LPG, liquefied petroleum gas, petrol, fuels in automobile, solvent in dry cleaning, kerosene, domestic fuel, stoves. ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ नेम्स बताए गए हैं फ्रैक्शन के और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं. तो उनमें से 3 ये हैं कि पेट्रोलियम गैस ये यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे या फिर एलपीजी के तौर पे. पेट्रोल को ऑटोमोबाइल्स में या फिर ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. कैरोसिन को स्टोव्स में यूज़ किया जाता है. ओके, ये डोमेस्टिक फ्यूल होता है. देन डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, वाटर पम्प्स एंड जनरेटर्स. बिटुमेन, पेंट्स, metalling the roads. Lubricating oil as a lubricant in machines. Paraffin wax, candles, shoe polish, Vaseline. Asphalt, making roads. Tar, surfacing roads. देखिए, डीजल का यूज़ किया जाता है हैवी मोटर्स में, ठीक है, व्हीकल्स में, जैसे कि वाटर पम्प्स हो गए, जनरेटर्स हो गए और व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है. बिटुमेन का यूज़ किया जाता है पेंट्स में या फिर रोड्स की मेटलिंग में. ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है उसका मशीन्स में ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है. पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है कैंडल, शू पॉलिश या फिर वैसलीन बनाने के लिए. एसफेल्ट का यूज़ किया जाता है रोड्स बनाने के लिए और तार का यूज़ किया जाता है रोड्स के सरफेस को कवर करने के लिए. ओके, नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल्स यूजुअली फाउंड अलोंग विद द पेट्रोलियम डीप इनसाइड द अर्थ's crust. It consists mainly of methane gas along with small quantities of other gases like ethane, propane, butane, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, hydrogen sulfide, helium, etc. and is a non-polluting fuel which leaves no residue behind. ओके, देखिए, नेचुरल गैस जो होती है ये फॉसिल फ्यूल होती है जो कि यूजुअली डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट पाई जाती है पेट्रोलियम के साथ ही. ओके, तो ये मेनली इसमें मीथेन होता है. ओके, और इसमें कुछ और स्मॉल क्वांटिटीज़ होती है दूसरी गैसेस की, जैसे कि ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम. ओके, और ये एक नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल होता है. ओके, it is colorless, odorless. Since it causes very less pollution, it is also said to contribute to a green environment. It is used as a domestic and industrial fuel. It can easily be transported through pipes. Such networks of pipes exist in Vadodara and in some parts of Delhi. देखिए, क्योंकि ये कलरलेस, ऑर्डरलेस होता है और ये लेस पोल्यूटेड होता है क्योंकि पोल्यूशन कम फैलाता है, तो इसे हम कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए. ओके, अब डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में इसका यूज़ किया जाता है और इसे इजीली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो इस टाइप की जो पाइप्स है वो मेनली वडोदरा में है और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में है. ओके, नाउ इट कैन बी स्टोर्ड under high pressure as compressed natural gas CNG. CNG is an excellent fuel for automobiles because it causes very less pollution. तो इसे स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर से, जिसे हम CNG गैस बोलते हैं. और CNG जो है ये एक्सेलेंट फ्यूल होता है और
ये लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है एनवायरनमेंट में. ओके, नाउ नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. इट डिकम्पोजेस इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग. हाइड्रोजन इज देन यूज्ड इन द पेट्रोलियम ऑफ अमोनिया. देखिए नेचुरल गैस जो है ये मैन्युफैक्चर की जाती है कई तरीकों से, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स से. ओके, तो डिकम्पोजर्स इसमें होते हैं जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन हीटिंग के थ्रू आते हैं. ओके, हाइड्रोजन जो है यूज किया जाता है अमोनिया प्रोडक्शन के लिए. ओके, नाउ नेचुरल गैस कैन बी फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा. तो नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे. ओके, एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं? इट इज अ क्लियर फ्यूल, कॉजेस लेस पोल्यूशन. It burns with a smokeless flame, so it does not cause much pollution. It can be directly transported to the homes and industries through networks of underground pipelines. It has high calorific value. It does not produce any poisonous gas on burning. देखिए ये एक क्लीनर फ्यूल होता है और बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करता है. ओके, ये स्मोकलेस फ्यूल होता है और इससे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता. ओके, जब इसे जलाया जाता है तो ये स्मोकलेस फ्यूल होता है. ओके, तो ये डायरेक्टली होम्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में जो हमारी पाइपलाइंस होती हैं उनके थ्रू इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. और इसमें कैलोफोरिक वैल्यू जो होती है वो काफ़ी हाई होती है और कोई भी पॉइजनस गैस इससे प्रोड्यूस नहीं होती है. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एनर्जी क्राइसिस. Important sectors such as agriculture, industry, transport, power generation and domestic fuels are dependent on fossil fuels. Increase in population and overutilization of natural fossil fuels have resulted in the imbalance between the demand and supply of fossil fuels. देखिए जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हो गए जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, तो ये सारे जो होते हैं ये सब डिपेंड करते हैं फॉसिल फ्यूल्स पर. ओके, तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से नेचुरल फॉसिल्स जो होते हैं इनकी यूटिलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है. ओके, तो जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड में. ओके, द मॉडर्न लाइफस्टाइल हैज़ लेड टू मोर डिपेंडेंस on many types of machines and devices that require power or fuel for working. More than 75% of energy demands by various sectors in the world are dependent on fossil fuels. देखिए जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो डिपेंड करते हैं किस पर? मशीन्स पर, डिवाइसेस पर, जिन्हें चलाने के लिए पावर और फ्यूल की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो 75% जो एनर्जी है वो डिमांड में होती है सेक्टर में. ठीक है, और 65% इन इंडिया 65% ऑफ एनर्जी डिमांड्स आर फुलफिल्ड बाय कोल. मतलब कि कोल के थ्रू ही जो डिमांड है वो पूरी की जाती है. ठीक है, एनर्जी की. नाउ द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स आर ऑल्सो इंक्रीज ट्रमेंडसली. तो जो व्हीकल्स है रोड्स पर वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं. ओके, वी मस्ट यूज अवेलेबल रिसोर्सेज ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. वी मस्ट नॉट ओवर यूज दैम एंड शुड ट्राई टू रिप्लेस दैम विद द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स एज दे आर रेडिली अवेलेबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग. हमें हमेशा जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन्हें ही अपनी नेसेसिटीज़ के हिसाब से यूज़ करना चाहिए. हमें किसी भी रिसोर्स का ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए. ओके, जैसे कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमें उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है या फिर बायोफ्यूल्स है जो कि ईजीली अवेलेबल होते हैं. ओके, और नॉन पोल्यूटिंग होते हैं. नाउ if the present trend of utilizing of resources continues, experts and scientists estimated that fossil fuel reserve will not last for many more than 50 to 60 years. Hence, we are in a situation of energy crisis. Useless the resources are judicially used, they will deplete fast. देखिए अब
क्योंकि यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिसोर्सेज का कंटिन्यूस है। तो जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट किया है कि अगर इसी स्पीड से इस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा इन एनर्जीज़ का तो 50-60 ईयर्स में ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा और हम लोग एनर्जी क्राइसिस पे आ जाएंगे। ओके, वी नीड टू यूज़ फॉसिल फ्यूल्स जुडिशियली टू प्रिवेंट एनर्जी क्राइसिस इन द फ्यूचर। अनलिमिटेड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन कॉज द फॉलोइंग problems: exhaustion of fossil fuels, pollution of air as they produce harmful gases on burning, which also leads to global warming। देखिए, हमें fossil fuels को judicially यूज़ करना चाहिए और हमें प्रिवेंट होना है एनर्जी क्राइसिस से फ्यूचर के लिए। ओके, तो हमें अनलिमिटेड यूज़ नहीं करना है फॉसिल फ्यूल्स का। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम इन्हें रोक सकते हैं, जैसे कि इसके थ्रू जो हो सकती हैं प्रॉब्लम, जैसे कि फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ओके, और जो पोल्यूशन है एयर का वो इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा और ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ओके, conservation of fossil fuels. We must take proper steps to conserve natural resources. Remember to switch off electrical appliances when not in use. According to Petroleum Conservation Research Association (PCRA), we must follow the given tips in order to save petrol, diesel as much as possible. Okay, देखिए, हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप कभी भी अगर आपके घर में किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है तो उसे ऑन पर नहीं छोड़ना है, आपको उसे ऑफ कर देना है। ठीक है, पीसीआर के तहत कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, स्विच ऑफ द इंजन वाइल वेटिंग एट द रेड लाइट, ड्राइव एट कॉन्स्टेंट and moderate speed, maintain correct pressure in the tires। देखिए, आपको अपनी व्हीकल की मेंटेनेंस रेगुलरली करानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी रेड लाइट पर है तो इंजन को आपको बंद कर देना है उस टाइम पे। ठीक है, आपको कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर ही गाड़ी चलानी है और करेक्ट प्रेशर रखना है अपनी टायर्स का। ओके, नाउ रीड एट अ ग्लेंस। Resources are of two types: natural resources and man-made resources. Natural resources can be renewable or non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are fossil fuels. They are exhaustible natural resources. Fossil fuels are formed from the dead remains of plants and animals. Coal is formed by burning of dead plants and during Carboniferous age. The various types of coal are anthracite, bituminous, lignite and peat. Petroleum is the fossil fuel formed from the decomposition of dead marine organisms over millions of years ago. The various useful products obtained from the fractional distillation of petroleum are LPG, petrol, diesel, kerosene and asphalt, etc. Natural gas is a clean and environment-friendly fossil fuel. Compressed natural gas (CNG) is a non-polluting fuel. We must not use fossil fuels judiciously as they are limited in nature. There is an urgent need to conserve non-renewable resources due to the alarming depletion of their resources. Key terms to know: natural resources, the materials obtained from nature; renewable and inexhaustible resources, resources which can be renewed and hence are inexhaustible. Non-renewable and exhaustible resources, resources which are available in limited quantity only in nature. Fossil fuels, fuels formed from the decay of the dead remains of plants and animals. Carbonization, slow process of conversion of dead plants and wood into coal. Refining and fractional distillation, the process of separating various constituents of fractions of petroleum by fraction distillation. Coal mine, reserve of coal below the lead. Mining, process of extracting coal from coal mines. Destructive distillation, process of obtaining different products from coal at a very high temperature and in the absence of air. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।